जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो वही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो। मेरे मुँहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रजा च होवे। थोड़ा शुकराना ते थोड़ी बड़ियाई होवे। शुकराना शुकराना शुकराना। जय गुरु जी, गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बाह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुकराना शुकराना शुकराना। साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुकराना। सानू ये श्वास देन दा शुकराना। हर पल दा शुकराना, पल पल दा शुकराना। सानू ये लाइफ ब्लेस करन दा शुकराना। अपने दरबार बुलान दा शुकराना। सानू हर पल दा शुकराना। गुरु महाराज जी साडा पल दा शुकराना। साडियां ब्लैसिंग्स इन्नियां ने कि असीं शुकराना भी नहीं कर पाते गुरु महाराज जी पूरी तरह। गुरु महाराज जी ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਟ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਅਨਬਾਇਸਡ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਗੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ। ਔਰ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਅੰਕਲ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਕਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਗਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ XYZ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਹਿਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਿਆ ਪੈਰ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪੈਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗਲੇ ਵਾਲਾ ਲੋਕਟ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਨ ਸੀਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਰਸ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਰਸ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਗਿਰਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕਟ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੁੜਨ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਵਰੂਪ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੰਗੂਠਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਅੰਗੂਠਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਹਿਮ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਏ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਟ ਸਵਰੂਪ ਗਿਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਗਿਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਂ 2 ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਦ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं संध्या वेला, रविवार, संडे का दिन 17 मई मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। 6:47 है। 7 की ब्लेसिंग है। टाइम में भी बहुत गुरुपा की 777 की ब्लेसिंग मिलती है, इसलिए गुरुपा लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरुपा सबसे पहले मंत्र का जाप करूँगी। संगत जी आप भी मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी क्या सत्संग में सुनते हैं, आंटी लोग कहती हैं कि संध्या वेला का शुक्राना बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हम
दाई मेट के जाते ही तुरंत शुक्राना करते हैं रिकॉर्डिंग, क्योंकि बेटा भी कहीं गया हुआ नहीं है। बेटा रहता तो नहीं कर पाते, क्योंकि बार बार वो कमरे में आता है तो डिस्टर्बेंस होती है संगत जी। फिर उसको क्या पता सत्संग क्या होता हो, क्योंकि गुरुपा की संगत भी नहीं है, उसे पता भी नहीं और हम उसे समझा भी नहीं सकते, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता क्या है। जो गुरुपा की संगत उसको सब पता होता है। तो मेरे गुरुपा, जब तक मेरा शुक्राना रिकॉर्डिंग न हो जाए, बेटा अपना जहाँ भी है अपने बिजी रहे। हम जल्दी जल्दी इसलिए लंबा सत्संग नहीं करते संगत जी, हद से 15 मिनट 14 मिनट। मेरे कुछ थॉट भी तो नहीं रहता है संगत जी, थॉट भी तो होना चाहिए। गुरुपा आपने हमेशा दिया, बहुत दिया, अनंतम दिया, बहुत दिया, आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। बगैर गुरुपा हम इतने लंबे टाइम से बेड पे आपने संभाला, हमें संभाला, फैमिली को संभाला, सब कुछ आपने दिया। जो भी मेरे पास है सब कुछ आपका है गुरु, मेरा कुछ नहीं। मगर आपकी बेटी गुरुपा इतने लंबे टाइम से बेड पर, उसको हर तकलीफ़ वो सह ली, मगर गुरुपा जो अब तकलीफ़ हमें हो रही है वो हम नहीं सहन कर पा रहे। बहुत पेन में है, बहुत पेन, इतना पेन है कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा। संगत जी, लेफ़्ट साइड मेरा गड़बड़ है शुरू से, इस प्रॉब्लम के बाद राइट साइड सही था। अब लेफ़्ट साइड में क्या है संगत जी, कमर से लेके नीचे तक भयंकर पेन है। हम करवट नहीं सो सक रहे हैं, ना खुद करवट नहीं हो पा रहे, बैठ के लेफ़्ट राइट सोते हैं, सीधा नहीं सो सकते, पैर फैलाते ही गुदगुदी के झटके, मेरा राइट साइड सही था उसमें झटके आते हैं। बहुत डर गए इसलिए नहीं, सीधा नहीं सोते। आज बहुत पेन है, भयंकर पेन है। हमने पेन किलर, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर खाया है, जो डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपको पेन बर्दाश्त न हो तब खाना, तो नहीं बर्दाश्त कर। ऐसे पूरे पीठ, कमर में, पूरे हिप्स में, फिर लेफ़्ट साइड के पूरे घुटने तक ऐसा दर्द, ऐसा दर्द, सांस नहीं लिया जा रहा संगत जी, बैठा नहीं जा रहा, बैठ रहे हैं फिर लेट जा रहे हैं। अरे कितना लेटे, सोचते हैं बैठे तो बैठने में बहुत पेन है। तो प्लीज़ गुरुपा, इतने लंबे टाइम से बेड पर, अब प्लीज़ गुरुपा हमें हर कष्ट से सुकून दो, राहत दो, मुक्ति दो। आपकी बेटी में हिम्मत नहीं तकलीफ़ सहने की, अब आपकी बेटी को हर कष्ट से मुक्ति दो। बाकी आप जानो, आप देखो, हमने आपसे कहा था गुरुपा रोज़ सुबह अरदास करते हैं, ये हम हॉस्पिटल तो नहीं जाएंगे, आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरा इलाज करो। सारी प्रॉब्लम तकलीफ़ को हमने आपके चरणों में रख दिया। अब आप जानो, आप देखो, आप संभालो, बस हमें राहत सुकून दो। गुरुपा के बहुत नेगेटिव मैसेज थे बेटे को लेकर, फैमिली को लेकर, कि जो जो कर रहे हैं काली क्रिया, वो आज अमावस्या है ना। गुरुपा का मैसेज था कि अमावस्या के दिन संभल के रहना। संगत जी बताओ कैसे संभल के रहा जाता है। हम बेड पे है, जिसको जहाँ जाना है अपने काम से आएगा जाएगा, और करने वाला आप घर में बैठे हो तो कर ही दे रहा है, तो क्यों कर रहा है, तो गुरुपा जाने। अब गुरुपा आपकी बेटी तो चल नहीं सकती, तो आपकी बेटी ने आपसे कह दिया कि आप देखो, आप जानो, आप संभलो, मेरी फैमिली की रक्षा आप करो। बेटा भी कहीं जाएगा, जमाई लोग जाएंगे, अंकल जाएंगे, हैं, तो गुरुपा सारे कष्ट से राहत सुकून दो। जो ये सब करा उसको आप देखो, आप जानो, उसे सद्बुद्धि दो, नहीं तो उसको आपको जो करना है करो। क्यों इंसान ऐसा करता है, क्यों किसी को परेशान करता है, ऐसा करके उसे क्या हासिल कर लेगा, क्या मिल जाएगा। अगर हमको कुछ हो गया, हम तो मुक्त हो जाएंगे, मगर क्या तुमको सुकून मिलेगा जो तुम गलत काम कर रहे हो। तो गुरुपा उस इंसान का दिमाग खोल दो कि गलत काम बंद कर, नहीं तो उससे आपको सजा दो, जो करना है करो, हम नहीं जानते। हम आपसे गलत कहने को नहीं कहेंगे, मगर आप तो जानते हो कि किसके साथ क्या करना है, तो आप देख लो गुरुपा, क्योंकि अब हम बहुत थक गए, बहुत हम परेशान हैं। हमेशा हमको प्रॉब्लम होती रह रही, पहले नहीं था, बहुत हो रहा। तो प्लीज़ गुरुपा हमारे सारे कष्टों को देखो, हमें हमारा इलाज आप करो। हम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, दवा नहीं खाना चाहते, इतना कष्ट है कि हमको खाना पड़ रहा है दवा। हम बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर खाए, बहुत नहीं देखे, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, सांस नहीं लेने पर, तो हमने खाया। मेरे गुरुपा अगर आपकी बेटी से कोई गलती हो गया तो माफ़ करना, बाकी अब आपको सब कुछ न कुछ एक्शन तो आपको लेना होगा गुरुपा। ऐसे कब तक चलेगा? आप बोलते हो कि ध्यान दे, ये चीज़ निकाल, वो चीज़ निकाल, ये कर, वो कर। गुरुपा आपकी बेटी चल नहीं सकती तो कैसे कोई उपाय करेगी, कैसे उतारा करेगी, कैसे ढूंढेगी। हम रोज़ सुबह शाम आपसे अरदास करते कि प्लीज़ गुरुपा आप मेरे मंदिर में हो, हमेशा रहना, मत जाना, माता रानी के साथ रहना, इस घर को आप संभालो। देखो घर आपका, परिवार आपका, घर तेरा, सब तेरा, मेरा कुछ नहीं। तो गुरुपा जो चीज़ जहाँ हो, आप तो गुरुपा एक जगह बैठ के पूरी दुनिया देख लेते हो।
हर इंसान का स्कैन कर लेते बैठे बैठे, तो फिर हमारे घर का सब आपको पता है, हम तो नहीं जानते। पैर नहीं कि ढूंढे, यह हर संगत की तरह कह नहीं सकते कि गुरुपा हाथ पकड़ के निकलवा दो। तो प्लीज़ गुरुपा, जो सामान जहाँ जहाँ जिससे हमारे घर में समस्या आ रही है, तो सारी समस्या का जड़ ख़त्म करो, भस्म करो। बाकी आपकी बेटी नहीं ढूंढ सकती, ना कोई मदद करने वाला, ना हम चल सकते कि ढूंढे। माफ़ी चाहते हैं, अब आप ही देखो, आप ही जानो, आप ही संभालो। हमारे घर में जो जो प्रॉब्लम आ रही, काम बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, घर में सुकून शांति नहीं है, जो भी समस्या, जो भी वजह, ब्लैक मैजिक हो, नेगेटिविटी हो, क्या है क्या नहीं, उसे आप ही को देखना है। आपकी बेटी के पास पैर होता तो आपकी बेटी बहुत कोशिश करती, हर चीज़ कोशिश करती, हर कोने कोने में ढूंढती। मेड लोग का वही है, अगर इनको दिखेगा भी तो बोलेंगे नहीं दिख रहा है, बाकी घर वाले करेंगे नहीं, मानते नहीं, इन चीज़ पे भरोसा नहीं। मेरे घर के सारे लोगों को आप तो खुद जानते हो ना गुरुपा, तो प्लीज़ अब आप ही को देखना है, आप ही को सब ठीक करना है, क्योंकि हमारे पास तो मजबूरी है कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो अब आप देखो, जो भी उतारा उपाय करना पूरे फैमिली का, आप देखो, घर का उतारा उपाय आप देखो, आप जानो। बहुत मैसेज आता है मंदिर में जाके ये कर ले, वो कर ले, हनुमान जी को लड्डू चढ़ा, बूंदी के हनुमान जी को चोला चढ़ा, दीपक जला, हम कैसे जाएं, कैसे करें, आप बताओ गुरु, आप ही बता दो कैसे करें। हम सत्संग सुनते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि हम तो चल नहीं सकते, हम करें कैसे, किससे करवाएं, कोई न करने वाला है, न कोई करवाने वाला है। हम बिस्तर पे, तो मेरे घर का सुरक्षा रक्षा आपको करना है, आप जानो, आप देखो गुरुपा, जो भी ऐसा कर रहा है ना, चाहे हमको चाहे किसी संगत को, सबको आप सजा दो गुरुपा, आप करो, हर संगत की सुरक्षा रक्षा आप करो। जो आपके संगत है ना, सारी संगत परेशान है ब्लैक मैजिक से, सारी ब्लैक मैजिक दुनिया से ना भस्म कर दो गुरुपा, ख़त्म कर दो। और जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना, उनको भी ऐसी सजा दो कि कभी ब्लैक मैजिक करने के पहले सुबह सोचे, सबको कड़ी से कड़ी सजा दो, ताकि वो लोग रूह कांप जाए, सब करने के पहले सोचें। सारी संगत को ब्लेस करो, सारे संगत के परिवार को ब्लैक मैजिक से रक्षा सुरक्षा आप करो। हर संगत की हर अरदास सुनना गुरुपा, सबका दुख दूर करना, सबको हेल्थ लाइफ देना गुरुपा। आपका जो भी सत्संग से शुक्राना करता है या सत्संग सुनता है या शेयर करता है, सबको ब्लेस करो। हम गुरुपा सुख सत्संग को ब्लेस शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कोई रिलेटिव गुरुपा आपकी संगत नहीं है, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। बहुत आता जितना शेयर करो उतने अच्छे बनेंगे काम, नहीं कर पाते, क्योंकि हम जिसको भी भेजते हैं ना, कई चीज़ हमने भेजा, लोगों ने रिप्लाई दिया है कि मत भेजा करो हमको ये सब चीज़, तो हम नहीं चाहते आपका अपमान, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। हम किसी को नहीं भेजते हैं, सत्संग शेयर नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि लोगों को ख़राब लगेगा कि तुम क्या भेज रही हो, क्योंकि बहुत लोग गुरुपा नहीं जानते हैं सत्संग को, या आपकी संगत नहीं है, इसलिए हम आपका अनादर नहीं करवा सकते, या कोई आपके बारे में कुछ बोले पूछे तो हम बता भी नहीं पाएंगे, कैसे समझाएंगे, क्या क्या समझाएंगे। तो गुरुपा शेयर नहीं करते, उसे माफ़ करना। मेरे पुत्रों को मुक्ति देना, अपने चरणों में स्थान देना। आपका एक सत्संग आया था गुरुपा कि मेरे पितर लोग खुश हैं, तो वो मेरे पितर को संभालिए, उनकी आत्मा को शांति मुक्ति दे रही है। सारे पितर हमें माफ़ कर दें, मेरे सारे पितृजन बाल पितर सब हमारे परिवार को हमें पितर दोष से मुक्त करके मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दें, मेरे फैमिली को आशीर्वाद दें। हमसे कोई जाने अनजाने गलती, मेरे सारे पितर आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते, माफ़ कर दीजिए। मेरे परिवार को सबको आशीर्वाद दीजिए, पितर दोष से मुक्त कर दीजिए गुरुपा। आप सब कुछ आप करते हो गुरुपा, बस हमारे पितर लोग भी हमें पितर लोग माफ़ कर दें, उनको अपने चरणों से लगा के रखना, उनकी आत्मा को शांति मुक्ति देना। बाकी गुरुपा आप तो जानते हो गुरुपा कि आज के समय में लोग, हर इंसान अपने आप से परेशान है, समस्या सबकी अलग अलग है, परेशानी सभी को है, तो सबकी समस्या सबकी परेशानी ख़त्म करो, सबका अरदास सुनो, सबका दुख दूर करो, हमारी भी प्रॉब्लम ख़त्म करो। हमारे बच्चों ने मेरे लिए बहुत किया, इतना किया कोई के बच्चे नहीं करेंगे। हमारे बच्चों को लाइफ एम्ब्रेस करना, हर प्रॉब्लम से सुरक्षा रक्षा आपको करनी, मेरे घर में शांति सुकून देना, हर लड़ाई झगड़ा हर वजह ख़त्म कर देना, भस्म कर देना, नष्ट कर देना, चाहे रिश्तेदारों की वजह से, किसी की वजह से कभी मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा कोई तमाशा ना हो। घर में शांति सुकून दे, रिश्तों में प्यार देना। छोटी वाली बेटी आई थी, सब अच्छे से था, खुशी खुशी गई, कोई मन मुटाव नहीं था, तो बहुत अच्छा लगा आपका। इसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। बड़ी वाली भी आने वाली है 22-23 को, दामाद भी 2-3 दिन के लिए आएंगे, तो संभाल लेना, घर में शांति सुकून बनाए रहे। बेटा कम से कम अपनी बहनों से, अपने बहनों ही सबसे बात करें,
रिश्तों को समेट दो, जो रिश्ता बिखरा उसे संभाल लो गुरुपा, आप ही को सब देखना है। बाकी अब हम नहीं जानते क्या सही क्या गलत। अगर आपकी बेटी से कोई गलती हो गया तो माफ़ करना। आप हमारे घर में कभी कलह कलेश तमाशा मत होने देना। ज्वेलरी के चैप्टर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। कभी ज्वेलरी की बात हमारे घर में ना हो, बेटा ना करे ना कोई करे। ज्वेलरी जहाँ वहीं रहने देना, बाकी आपको संभालना है, क्योंकि हम नहीं चाहते अब कोई वजह हो अशांति कलह कलेश की, क्योंकि आज के समय में कलह कलेश करते समय नहीं लगता संगत जी, किसका कब मन बदल जाए, कब घर में अशांति हो जाए, सबके घर में प्रॉब्लम है। तो बस हम शांति से रहना चाहते हैं, हम सुकून से रहना चाहते हैं। बाकी गुरुपा, आपकी बेटी से कोई गलती हो गया तो माफ़ करना। आप शुक्राना आगे बढ़ाते फिर अगला शुक्राना करेंगे। आपकी बेटी आप हमारे परिवार को सबको ब्लेस्ड करो, बहुत बहुत ब्लेस्ड करो गुरुपा। हर प्रॉब्लम से सुरक्षा रक्षा आप करो। बाकी गुरुपा अब आप संभालो। देखो हमने आपको सौंप दिया, हमारे कष्टों में राहत सुकून दो। अब हमसे बर्दाश्त हो रहा इतना कष्ट, प्लीज़ गुरुपा सारे कष्ट को ख़त्म करो। आप ही मेरे डॉक्टर, हम आपसे बार बार करें, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, हमको हॉस्पिटल से बड़ा बेचैनी होता है। बाकी आप जानना, आप संभालना। राज अंकल, लीला आंटी, आप लोगों के लिए थैंक यू गुरुपा। आपको बहुत ब्लेस करें, बहुत ब्लेस करें। आप लोग हमेशा खुश हैं। आपकी फैमिली को गुरुपा बहुत ब्लेस करें। हमसे कोई भूल चूक हो गया तो राज अंकल लीला आंटी आप लोग माफ़ कर देना। संगत जी हमारे साथ मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहसा, ओम नमः शिवाय शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहसा, ओम नमः शिवाय शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहसा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु 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 जी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ करना संगत जी। जय गुरु। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय में प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली द्वारका मोड़ से गुरु जी की बेटी मधु बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पण करती हूँ। स्वीकार करना गुरु महाराज, भूल चूक गलती क्षमा करना। संगत जी, आज का दिन गुरु महाराज ने हमें दिया, उसके लिए मैं गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। हमें लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, आत्म शांति प्रदान करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, हमारे रिश्तों को ब्लेस करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, कार्मिक चक्र से हमें बाहर निकालने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटांश शुक्राना। मेरे प्यारे बहुत है, कोटि कोटांश शुक्राना। और हम सब खुश हैं एक साथ, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु महाराज का अंग संग सदा सहाय, इस परिवार के हर एक मेंबर के साथ आप सहाय हो, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। हम सबकी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। पति की तरफ से शुक्राना, पति को लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। रात को पति अंकल के बहुत तेज खांसी समय लग गई थी और फिर आपका जल प्रसाद पिलाने से शांत हुआ, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, रात को जब हमने 12:30 बजे बर्तन वर्तन मांझ के हो गया था, सोने जाने थे, संगत जी लाइट बंद करी, अचानक ही पता नहीं हमारा डॉगी इतनी जोर जोर से भौंकने लग गया दरवाजे के पास, जो हमारा मेन डोर है, हम फ्लैट में रहते हैं वहाँ पे, और इतनी तेज तेज भौंकने लगा, ऐसे लग रहा था जैसे डोर के बाहर कोई है। सही 12:30 के और 12:15 के बीच की बात है संगत जी, और इतने जोर से हम सब डर गए। क्या तो एक मन तो करा दरवाज़ा खोलूं, फिर मैं बोली कि टाइम देखा तो टाइम इतना होता, मैं कि रहने दे, टाइम ख़राब है इस टाइम पे, वो टाइमिंग ख़राब थी इसलिए मैंने नहीं खोला। और फिर मैंने गुरु महाराज को जल प्रसाद पूरे घर में छिड़का, गंगा जल वहीं दरवाजे के अंदर ही चौखट पे छिड़का, और गुरु महाराज का मंत्र जाप मन में करके बैकफायर कर दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद वो डॉगी शांत हो गया। मैंने गुरु महाराज को शुक्रिया किया, मैं तो पता नहीं क्या आला बला थी, गुरु महाराज ने बाहर फेंकी उसको, उसके लिए मेरे गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और संगत जी, रात को गुरु महाराज का सत्संग आया था कि बेटे के ऊपर खतरा है, जल्दी से सत्संग सुन ले। तो संगत जी, मैंने सत्संग भी सुना था, शुक्राना भी लिखा था उसके अंदर, फिर भी
पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट आया था बेटे के ऊपर। और संगत जी सुबह बेटे को खाटू शाम के लेके गया था गुरु महाराज दोनों बेटों को। और वहाँ से आते टाइम पे फिर ट्रैक्टर से धक्का लग गया उसको, पैर पे से चला गया ट्रैक्टर नीचे पंजे पे से। और गुरु महाराज की कृपा है कि पैर तो सही सलामत है, थोड़ा सा वो ब्रेक हुआ है, क्या बोलते हैं ना, हड्डी क्रैक हुई है अंदर से पंजे में से। और उसके लिए मैं गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। कोता पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था और मेरे गुरु महाराज ने उसको छोटी सी चोट में क्रैक में वो करवा दिया। और प्रार्थना करूँगी गुरु महाराज आप ही बेटे के पैर को हड्डी को जोड़ देना मेरे गुरु महाराज जल्दी से, और बच्चे की रक्षा करने के लिए पल पल हर पल आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए बच्चों को आपका कोटि कोटि शुक्राना। खाटू नरेश के दर्शन करवाने के लिए दोनों बेटों को आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, हम सभी की श्वासों का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और सत्संग में बताया था कि हमने काली माता का कुछ बोला हुआ है और भूल गए तो मेरे गुरु महाराज, मेरे याद नहीं है गुरु महाराज, मुझे याद ही नहीं है गुरु महाराज के दिन दशा ऐसी चल रही थी इतने सालों से, इसीलिए हर जगह पे जा जाके कुछ ना कुछ कोई बोलता, कभी कोई बोलता, कोई कहाँ भेज देता, कोई यहाँ माथा टेको वहाँ, कुछ ना कुछ बोल बोल के आए। इसके लिए मेरे मालिक अभी याद भी नहीं है हमारे तो गुरु महाराज, उसके लिए आपकी बेटी क्षमा प्रार्थना करती है। और माता काली से भी क्षमा प्रार्थना करती हूँ, मैया मुझे क्षमा करना। और जब मुझे मेरे आसपास में जो भी मंदिर होता है मैं वहीं मंदिर में चली जाती हूँ, जब भी मेरे को टाइम मिलता है शनिवार को, कभी कभी नहीं भी जाती हूँ, कभी कभी चली भी जाती हूँ और माथा टेक के आती हूँ। और जो भी मेरे से प्रसाद नारियल चुन्नी चढ़ाई जाती है, फूल पाखड़ी गुरु महाराज की कृपा से वो चढ़ाए जाते हैं। और वो माँ आई करना माँ उसको, और तो गुरु महाराज ने बताया था श्रृंगार और वो मतलब चूड़ी सिंदूर और पान का बेड़ा चढ़ाने बोला था। तो पान का बेड़ा तो मुझे मिला नहीं था, तो मैंने सिर्फ चूड़ी सिंदूर चुन्नी और नारियल 11 रुपये ये मैंने माता के चढ़ाए थे। हमारे यहाँ पे पास में जो काली माता का मंदिर है उसमें, माँ आप वो स्वीकार करना और मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करना। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ गुरु महाराज मुझे माफ़ी दिलाओ, मुझे या बच्चों ने या पति ने, हमने किसी ने भी बोला हो काली माता के प्रति कुछ भी बोला हुआ है तो उसके लिए हमें क्षमा करे माँ। और या फिर आप याद दिलाए और जो भी करवाना है आप खुद ही हाथ पकड़ के करवा लेना माँ, क्योंकि हम तो मूर्ख ज्ञानी है और बस पल पल गलती करते रहते हैं माँ। हमें नहीं पता कि भगवान से कभी वो नहीं विष नहीं मांगनी चाहिए कि ये विष मांगने से आदमी उसमें ही फंस जाता है। अब तो आप तो कान पकड़ के माफ़ी मांगते माँ, इसके लिए हमें क्षमा करो और अपनी कृपा अपने बच्चों पर सदा बनाए रखना। और हर नकारात्मक ऊर्जा से हमें मुक्त करने के लिए, तंत्र मंत्र से मुक्त करने के लिए मेरी प्यारी मैया का, मेरे बाबू सोनपरी का अनंतम शुक्राना, मेरी माँ काली का, मेरी प्यारी मम्मी है सोनी सी, उसके लिए शुक्र 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 मेरी प्यारी मैया का। और मेरे गुरु महाराज का भी अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज क्षमा कर देना बाबूजी, प्लीज़ क्षमा कर देना। और आपकी अपार कृपा अपने परिवार पर बरसाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। बच्चों को पल पल रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्शन कवच में रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। बच्चों के कर्म कटवा रहे हो आप, भारी भारी कर्म छोटे करके ही कटवा रहे हो, उसके लिए भी मेरे प्यारे बाबूजी का, मेरे सोनी बाबूजी का कोटि कोटि शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु महाराज का। बाबूजी आपकी बेटी को याद दिला दिया करो जो भी सत्संग में शेयर करना होता है। और 2-3 दिन पहले से मेरे पास सत्संग भी आ रहा था गुरु महाराज का कि तेरे बेटे का बाथरूम में पैर पैर फिसल के चोट लगने का एक्सीडेंट हो सकता है बाथरूम में। तो वो बाथरूम में तो हुआ नहीं, रोड पे हुआ था, पर मालिक ने बचा दिया, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। और अभी तो बेटा घर पे आया नहीं है, वहीं से हॉस्पिटल के बाद में वो उधर ही चला गया जहाँ बड़ा बेटा रुका हुआ है। और अब मैंने फ़ोन किया है उसके पास, अब आएगा तो गुरु महाराज आप ही संभालना और इनकी बुद्धि आप ही सही करोगे। अब मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर सौंप दिया मेरे गुरु महाराज, आप ही देख लेना। पति अंकल भी बर्फ़ी लेके आए थे, वैसे तो कभी जल्दी से खर्चा देते नहीं है और अपने आप ही बर्फ़ी का डब्बा ले आए। अब गुरु महाराज ने सत्संग में बताया कि खुशी के भी लाई हुई सफ़ेद बर्फ़ी, सफ़ेद मिठाई ना खाना बिल्कुल भी, सफ़ेद चीज़ें। और पति अंकल ही आधे किलो का डब्बा लेके आए मिठाई का, और मैंने देखा तो वो वाइट कलर की थी।
अब मैं तो समझ में नहीं आ रहा, वो बोल रहे कि तू क्यों नहीं खा रही है, तो खा रही क्यों नहीं है तू, ऐसे मेरे पीछे पड़ रहा है, मैं क्या करूँ गुरु महाराज। अब आप भी देखो, खाना है नहीं खाना है मुझे नहीं पता गुरु महाराज, और बच्चों को सद्बुद्धि दो, अगर कुछ भूल चूक गलती तो क्षमा करना गुरु महाराज। पल पल आप हमारी रक्षा कर रहे हो, मार्गदर्शक कर रहे हो, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। पैर में चप्पल, पेट में रोटी, तन पर कपड़ा, सर पे छत देने के लिए लख लख शुक्राना। पांचों तत्वों की शक्ति हमें प्रदान करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। पांचों तत्वों का शुक्राना। हमें आपकी अपार कृपा बरसाने के लिए लख लख शुक्राना। हमारा मार्गदर्शक करने के लिए लख लख शुक्राना। नेकी पे चलाने के लिए लख लख शुक्राना। बदी से टलाने के लिए लख लख शुक्राना। चारों हाथ पे से सलामत देने के लिए लख लख शुक्राना। आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ, आंखें, दांत देने के लिए लख लख शुक्राना। एक साफ माइंड दान करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। हमारे मेरा पति का, बड़े बेटे का, छोटे बेटे का, बेटी का, हम सबका बुद्धि का बंधन खोलने के लिए आपका कोटि 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 शुक्राना मेरे प्यारे बाबूजी का। और हाँ, आंखों की रोशनी ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे सोने बाबूजी का। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जितने सत्संग सुना जाते उतने तो सुन लेती हूँ, बाकी सब आप ही संभाल लेना गुरु महाराज। ऐसे पूरे दिन ही लगाए रखती हूँ कानों में, रात को भी चालू करके सुनो। हाँ, रात को बहुत जोर से डर लगने लगा था, कुत्ता भौंक रहा था गुरु महाराज। मैंने बगल में ना पंचमुखी हनुमान का मैं चला के छोड़ दिया था, बज रहा था, वो पता नहीं कब तक बज रहा था। फिर मैं सो गई 1 बजे, नींद भी नहीं आई थी बाबूजी, संगत जी नींद ही नहीं आई थी। पता नहीं एकदम से मन में वो हो रहा था कि ये कहाँ से क्या, कुछ रोज रात को कुछ ना कुछ ड्रामे होते ही है। वो डॉगी रोज उसी टाइम पे भोंकता है, कल परसों भी भोंका था, उसके 1 दिन पहले भी भोंका था। तो क्या है बाबूजी, ये सब आप देखो और आपका सकट पैरा रखो, कोई चीज गंदी अंदर ना आने पाए। आपके होने के बाद भी बाबूजी कैसे ये होता है, मैं ये समझ में नहीं आता गुरु महाराज। आप ही देखो, आप इस घर को पॉजिटिव करो गुरु महाराज, आपका दिया हुआ ही घर है, सब कुछ आपका है मालिक, तो आप ही संभालो, आपको संभालना है बस। कोई नकारात्मक लोग ना आए इस घर में, सबको पॉजिटिव कर देना, खुशहाली बख्शने के लिए लख लख शुक्राना। मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं कि अब तेरे जीवन में खुशियों के पल आएंगे, तू बहुत रो ली, अब तेरे रोने के दिन खत्म हो गए और अब से तेरे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, तू महाराज की जैसे रहेगी। इसके लिए शुक्राना गुरु महाराज का, अंतम शुक्राना बाबूजी। आपकी बातें सुन के भी खुशी भी होती, थोड़ी आंसू भी आने लग जाते। बाबूजी माफ कर देना गुरु महाराज, क्योंकि कभी हमसे कोई इतनी अच्छी बातें कराई नहीं है गुरु महाराज। और आपके सत्संग में तो इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन सुन के ना दिल भी खुश हो जाता है। और बाकी जैसे भगवान की मर्जी, भगवान पे छोड़ दिया, सब कुछ होएगी जो देखी जाएगी, जो होगा अच्छा ही होगा बस। और दुनियादारी गुरु महाराज सिखा रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सभी के मुखौटे एक एक करके दिखा रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज। क्या कर सकते हैं, गुरु महाराज ने बोला तो चुप रही हो, जो भी करना है मैं करूँगा, जो भी बोलना है मैं बोलूँगा, तो शांत होकर मुंह बंद करके बस सबके मुंह देखते रहे, बस देख रही हूँ। आप जी कभी कभी तो गुस्सा भी आ जाता है, फिर बाद में याद आता है कि गुरु महाराज ने बताया था कि कर्म कटवाने जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी लोग होते हैं सारे कार्मिक ही होते हैं, इनके कर्म करने के बाद में ही सोल फैमिली बनती है। बस इसी वजह से थोड़ा चुप हो जाती हूँ, पर कभी कभी एकदम रोष चढ़ जाता है दिमाग में। तो गुरु महाराज इस गुस्से को शांति में परिवर्तित कर दो गुरु महाराज, उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। आत्मा शांति प्रदान करो, किसी दुश्मन के ऊपर भी मैं गुस्सा ना करूँ गुरु महाराज। मेरी वाणी में ऐसी मिठास संयम प्रदान करने के लिए मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अपार प्रेम की वर्षा कर रहे हो आप, यूनिवर्स का प्रेम बरसा रहे हो, उसके लिए भी आपका कोटि 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 शुक्राना मेरे प्यारे बाबूजी का, कोटि कोटि शुक्राना। और सदा हम पर अपनी मेहर बनाए रखना, मेहरा वाले सैया। और जैसे आपने हम पर कृपा करी वैसे सभी संगत पे करना, सभी के बच्चों को अपना प्रोटेक्शन देना गुरु महाराज, सभी के बच्चों को कामयाब करना, सभी के बच्चों की बुद्धि सही करना, अपने माता पिता का मान सम्मान करे, अपने बड़ों की इज्जत करे गुरु महाराज। और गलत रास्तों से बचाना बच्चों को, और बड़ों को भी बचाना गलत रास्ते जाने के लिए कौन सा टाइम लगता है गुरु महाराज। सभी को अच्छी बुद्धि बख्शना और सबको अपने चरण शरण में ही रखना, सदा मेहर बनाए रखना, सभी संगत और सभी जीव जंतुओं का कल्याण करना गुरु महाराज। सबको दाल रोटी बरकत बख्शिश करना, शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरु महाराज।
कुछ भूल चूक गलती हो गई तो क्षमा करना, ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना मेरे प्यारे बाबूजी, मेरे सोने बाबूजी, लव यू बाबूजी। जय संगत जी, अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो मुझे क्षमा कर देना गुरु महाराज। संगत जी स्वीकार, कोई बात बुरी लगी तो मुझे माफ कर देना, स्वीकार करना मेरे प्यारे गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे बाबू जी, मेरे सोने बाबू जी, मेरे मिठे मिठे खट्टे मिठे बाबू जी। जय गुरु जी, लव यू बाबू जी, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू बाबू जी, लव यू। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी की सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, कोटि कोटि नमन गुरुपा। आज सोमवार गुरुपा का दिन है। आज 4 मई 2026 संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा गुरुपा की मेहर हर वक्त बरस रही है। कृपा हर पल पूरी संगत पर बरस रही है। गुरु जी अपना ब्लेसिंग दे रहे हैं सारी संगत को। गुरु जी मुझे रोज़ अमृत वेले उठा देने का शुक्राना। गुरु महाराज अपने मंत्र जाप करवाते हैं और शिव पुराण का पाठ करवाने का शुक्राना। सुखमणि जी का पाठ और जपजी साहब का पाठ करवाने का शुक्राना। शिव जलीसा, दुर्गा जलीसा, रक्षा कवच पर करवाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरपा का हुक्म आया कि पुत्र मेरा सत्संग मई के महीने में तुमने करना है, चाहे अकेले में ही करना, लेकिन करना है। और इस रंग का चोला जरूर लगाएं। जी गुरपा अनंतम शुक्राना गुरपा। और आपने गुरपा जो भी आपका ही घर है, आप ही की बेटी हूँ मैं, आपने ही करवाना है जो भी करवाना है। और चोला भी आप ही ले मेरे मंगाएंगे। गुरपा आप ही इंतज़ाम करेंगे सारी चीज़ों का, सत्संग का और चोले का। आपके बिना मैं अधूरी हूँ, मैं नहीं कर सकती गुरपा, आप ही करवाएंगे। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरपा। गुरपा आपने कहा कि तूने सत्संग करवाना है। वैसे तो मैं रोज़ आपका सत्संग करती हूँ, रोज़ शाम को आपकी जोत जलाती हूँ और चाय प्रसाद, जल प्रसाद और जो कुछ भी हमारे घर में होता है मैं उसका प्रसाद भोग लगा के घर में अपने सारे परिवार को देती हूँ। पर मैं आपकी प्लेलिस्ट नहीं लगाती। मेरे सासू माँ को और रिंकू वीर जी के शब्द बहुत पसंद है। वही सुनते सुनते उसके बाद में 108 बार मंत्र जाप लगाती हूँ और फिर शिव जी की आरती करके सबको प्रसाद बांटती हूँ। ये आप रोज़ करवाते हैं गुप्पा, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। आपने कहा एक दिन सत्संग करना है और फिर आपकी गद्दी लगाई जाएगी, वो आप ही करवाओगे गुप्पा, आप ही करवाओगे। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम कर पाएँ, आप ही हमें हाथ पकड़ के करवाना गुप्पा। आपका अनंतम शुक्राना। और मेरे परिवार पे रक्षा कवच बन के और सही मार्गदर्शन करने का आपका अनंतम शुक्राना। आप सारी बीमारियां, सारे एक कष्टों को आपको ख़त्म कर रहे हैं, आपका अनंतम शुक्राना। आप हर चीज़ का इलाज और उपाय बताते हैं और मैं लिख लेती हूँ और कई बार सारी संगत के साथ शेयर भी करती हूँ और सुनाने की करने की कोशिश करती हूँ, जो कर पाती हूँ करती हूँ। आज आपने एक आँखों के लिए सत्संग सुनवाया कि अपनी आँखों का ध्यान रख, और शरीर खराब हो रहा है पूरे परिवार की तो ध्यान रखती है, अपना ध्यान क्यों नहीं रखती है। जी गुरुपा, मैं अपना भी रखूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का इलाज बताते हैं और हम ही आलसी बच्चे हैं जो हम कर नहीं पाते हैं। संगत जी, हमें ज़रूर करना चाहिए।
गुरपा के अलावा और कोई नहीं है जो हमारा ध्यान रखता है। गुरपा ने आँखों के लिए बताया कि उसमें 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम मिश्री, 100 ग्राम सौंफ, 20 ग्राम सफ़ेद मिर्च लेकर पीस लें मिक्सी में। फिर उसे 1 चम्मच रात को गुनगुने दूध के साथ लेना है, 40 दिन तक लेना है। आपको फ़र्क नज़र आएगा। आप बाद में लेना चाहें वो मुझे नहीं मालूम। इस गुरपा ने 40 दिन तो बोला ही है, लेना ही लेना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बुजुर्ग और बच्चे आधा चम्मच ले सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरपा, आप ही मुझसे ये बनवा लेना, मैं ज़रूर बनाऊंगी और ज़रूर ये लूँगी। आपने कहा कि तुम्हारी आँखों की नसें जो हैं वो नसें ब्लॉक हो रही हैं और तुम्हारा जो है आँखों का पानी सूख रहा है, इसलिए हमें लेना ज़रूरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा मेरे इस जन्म में, पूर्व जन्म में जाने अनजाने में की हुई गलतियों को आप क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। और मैं अपने पितरों से, कुल देवी माता से, 33 करोड़ देवी देवताओं से, पूरे यूनिवर्स से, पूरे ब्रह्मांड से, गुरुपा आपसे, पूर्वजों से, सबसे अपनी क्षमा याचना करती हूँ। मेरे परिवार से किसी से भी जाने अनजाने किसी जन्म में गलती हो गई हो तो आप हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दिए। हम आपके निमाणे बच्चे हैं, जाने अनजाने गलती हो जाती है तो हमें क्षमा करना और अपना आशीर्वाद सदा ही बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी की बेटी अमर शर्त अपना सवेर का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ। गुरु पापा के चरणों 'ਚ बैठ के राज अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने लिए ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सवेर का समा आया 6:58 AM, दिन हैगा शनिवार और अज तरीक हैगी आ 2 मई 2026। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना पिताजी महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, गुरु पिताजी महाराज बहुत ही प्यारे आ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਪਾਏ ਸੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਹਲਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁਟਕੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇ 7 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਡੋਲਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਪਾਏ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ 2 ਜਾਣੀ ਕਿ ਟੁਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 2 ਲੌਂਗ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਆਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਸੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮਈਆ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਪੂਰ ਔਰ ਲੌਂਗ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋਤ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਨਾ। ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰਨਿਮਾ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੀ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਮੈਂ ਜੋਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ 1 ਬੇਟਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਬੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਲਾ ਦਿਓ ਬੈਂਡ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਅੱਖ 'ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖ 'ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਈ ਜਾਣ ਡਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਆਂਟੀ ਨੇ, ਜੇਠ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਪਾਏ ਕਰ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ 'ਤੇ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਚੀਰਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਉਹਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤੀਲੇ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਫਟਾਫਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਖ 'ਤੇ ਨਾ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੱਟੀ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਖ ਉਹਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਈ ਆ, ਵੀ ਟਾਂਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਟਾਂਕਾ ਲਗਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸੋਰੀ ਗੁਰੂਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੱਟੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੂਬ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ 3 ਮੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਰਾਸਤੇ 'ਚ, ਸ਼ੌਕ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਕਾਰ ਮਿਲੀ, ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਰੈੱਡ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿੱਕਰ ਨਾਲ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਏ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ 666 ਦੀ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਤ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਘਿਓ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਪਰ ਪਾਪਾ ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਜਾਈਏ। ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਮੋਹਰੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁੱਸੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਆਊਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਆਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਲੇਟ ਫਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਖ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਗੁਰਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਟਣੀ ਸੀਗੀ। ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਠਾਓ ਉੱਪਰੇ ਪਰਸਨ ਦੇ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਬਾ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਕੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਔਰ ਘਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣਾ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਔਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ, ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੀਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਹਲਦੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी महाराज। शुकराना पिता जी महाराज।